So, ladies and gentlemen, welcome to Fight Night 14, the semi-final, the second semi-final of the weekend. The last one, obviously, it was Northeast Tigers versus Haryana Warriors, and let's just start off by saying, again, you know, it went down to the final fight. It's been an explosive night. There's a lot of emotions out in the air at the moment. So I know these guys have got a lot to say, and you know, I'm sure this is going to be quite a fiery one. But sort of let's go through the card and the way it played out. First up, in the featherweights, we had Nanal Singh versus Sandeep Bagri, and you know, I think this was a good indication of what the rest of the night was going to turn out like. This was a close fight. You know, both guys, I think they both knew that, you know, whoever was going to start out with the win, you know, had a good chance of maintaining that role right through to the end. And you know, Nanal came out very strong, got that win. It was very good. It was very close. I think Bagri came in with some very close shots too as well, but Nanal, you know, he edged him on that. And I think, you know, if the decision had gone the other way, not many people could have disputed that. Going on to the Neeraj Goyad fight versus Basant Thapa. Obviously, we know that Neeraj was, you know, on a flight all day, very tired from this weekend's activities, and still managed to come in and put on an absolutely amazing performance. But what can you say about Basant Thapa? I mean, this guy came out, you know, he knew the test that was in front of him, and he was going for the knockout. You know, it was fantastic. You know, really good work, great action in that fight. But again, you know, it was the skills of Neeraj Goyad, that fantastic head movement, that good use of range, working on the inside, that really won him the day. And then the ladies with Asha Roka and Anita Kumari. Again, you know, it was like a chess match, that one. You know, it was very close. Anita Kumari, you know, she didn't take a back step at all. You know, sort of excuse the pun, but she really took the fight to Asha. And I think actually we saw for the first time maybe Asha losing a round here too as well. In the first, I think, you know, Anita, you know, really tested her, but you know, Asha being Asha and what we're used to, you know, she showed that heart of a champion. She came out in that third and fourth round very aggressive, and in the fourth, you know, she had something to prove. She knew, you know, she had to do something for her team, and she came out and she delivered, you know. So you know, it's very tough right now as the captain, obviously being on that losing side, but again, you know, another solid performance from Asha Roka. You know, and continues to be a dominant force in just combat arts here in India. Moving on to Sukhdeep Singh and Jatinder, and again, you know, this was a war. You know, that first round, I couldn't really call it. You know, it was again that chess battle. I think Jatinder actually just got that first round too, but you could see what was going on with Sukhdeep in that second, third, fourth. He came out in that second. He had established his range, you know, and he took control. And the rest in the third and the fourth, you know, you just saw a display of great boxing skill. But again, Nando, you know, when you're fighting against a boxer like that, you know, and it's very difficult to lose your game. It's very easy to lose your game. But Nando keeps charging forward, you know, and, you know, he bought the fight. He had to do what he had to do for his team. And that was an amazing performance. And that obviously moved on to the controversial one for the night, again in the heavyweight division. And I think whenever a fight does go to the final fight, you know, like it does in this situation, it did do last night, you know, it becomes instantly quite controversial. You know, Jagdeep Singh, you know, his tenacity, you know, just to, again, you know, taking on a challenger like Ashish, who, you know, is a very tough opponent. You know, he does charge forward, you know, grits his teeth down and gets on with it. So it was a big test for Jagrup. And, you know, like I said, when it goes to the final fight, the emotions are going to be very high. So, you know, I think as far as the decision is concerned, you know, it was very close. It could have gone either way. I don't think you can really argue that. I'm sure the captains are going to have something to say about that, as are the actual combatants themselves. But let's move it over to the captains and see what they have to say. First of all, to the winning captain. पास कर दो बाद में बात करूँगा पूछोगे तो बोलूँगी, अब क्या बोलूँ। कुछ नहीं, बस बढ़िया खेला हमारी टीम ने बेस्ट दिया, और तो कुछ नहीं बोल सकती।
अच्छा चांस था लास्ट में हमारे पास, थोड़ा हो गया, अब जो भी होना था। आपको कैसा लगा आपके परफॉर्मेंस के बारे में आज? मेरी परफॉर्मेंस क्या, लास्ट वाली परफॉर्मेंस को देख के तो थोड़ा सोचा था हमारी, अगर लास्ट वाला फाइट अच्छा मतलब खेला ही अच्छा, वैसे तो क्या बोलूँ, पर जो भी उनका डिसीजन था रेफरीज को, तो वो जीते, तो जो भी डिसीजन था तो उसी के हिसाब से उनकी टीम आगे गई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इनकी टीम आगे गई, बस और तो कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू, आपका फाइट बहुत बढ़िया था। थैंक यू। बसंत ने भी काफी कोशिश की आज। या आपको कैसा लगा आपके फाइट के बारे में? आज मेरी फ़ाइट, मतलब मैंने वहाँ पे बताया था, मैं 48 घंटे से सोया नहीं हूँ, सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ। और आज सिर्फ मैं टीम के लिए आया था। और जो SBL ने टीम का जो काम शुरू किया, हम सब में यहाँ पे टीम स्पिरिट दिख रही है। कोचेस लड़ रहे हैं अपने बॉक्सर के लिए। जब मैं मेरी टीम के कॉर्नर में खड़ा होता हूँ तो मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरा बॉक्सर कैसे भी जीते, मार मार मार। हम लोग का मतलब 2-3 kg वेट घट जाता है वहाँ पे। मेरे कोच का 2-3 किलो वेट घट गया आज, कमाल मुस्तफ़ा का। और इनकी टीम का भी अमित है, हितेश कोच साहब हैं। तो मतलब सिर्फ हम दो की टीम में नहीं, हम सबकी टीम में यही चल रहा है। और मैं मेरी टीम के लिए ही वापस आया था। मैं पूरा सोया नहीं था। और बसंत बहुत अच्छा बॉक्सर है, आर्मी से है। और मैं बल्कि चाहता था कि मैं जीवन के साथ खेलूं, क्योंकि वो और ज़्यादा टफ होता। बट आज मेरे को मतलब खेलते हुए लगा कि मैं टायर्ड था। मैं कल की फ़ाइट से नहीं, मतलब सोया नहीं इसकी वजह से। और इनकी टीम ने बहुत अच्छा किया। और आशा को शायद नहीं पता है, 2011 नेशनल गेम्स में मैं एक बार भोपाल गया था, तब ये छोटी बच्ची थी। उस टाइम मेरे को पता था कि इंटरनेशनल में ये मेडल लेके आई है, कुछ पता लगा था वहाँ पे। तो उस टाइम की बॉक्सिंग में और अब की बॉक्सिंग में इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये थोड़ा MMA स्टाइल की तरफ चली गई है। तो ये एक अच्छी बॉक्सर है। उस टाइम इसका बहुत अच्छा नाम था। इसको बॉक्सिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर बॉक्सिंग में जाए। और आशीष था, जगदीप पाजी के साथ खेला। आशीष ने हार नहीं मानी। एंड ननाव ये वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया का सबसे पहला, और ये उसी तरह से खेला। और मेरी टीम वालों ने भी, सुखदीप ने काफ़ी अच्छा खेला। और जितेंद्र नांदल जो है वो आर्मी से है, उसने काफ़ी कोशिश की पंच मारने की। बट सुखदीप 2 बार नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल में ओलंपिक क्वालिफाइज में गया है। सो जिसका जो लेवल है उसने वही दिखाया। Anyway, आपका टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। Yeah. अभी लास्ट फाइट के बारे में आपको क्या लगा? लास्ट में सबके दिमाग में ये है, क्योंकि अगर मेरा बॉक्सर हारता तो मेरे दिमाग में भी ये रहता, या बॉक्सर का नहीं, आशीष भी मेरा बॉक्सर है। ओके, क्योंकि जो DSP समोता है हरियाणा में, ये उसके पास ट्रेनिंग करता है। और समोता ने ही मुझे बोला था कि आशीष को कैसे भी करके डालो इसमें। एंड मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर जगह है तो। आशीष भी मेरा बॉक्सर है। और लास्ट की बाउट में अगर मेरा बॉक्सर हारता तो मेरे को भी यही लगता। लेकिन जो क्लियर पंचिंग थी, जगदीप की जो भी क्लियर पंचिंग थी, उसकी गर्दन हिल रही थी उसमें। तो अगर हम जजेस के हिसाब से सोचें, अगर हम टीम को छोड़ के जजेस के हिसाब से सोचें, तो जगदीप ही जीता हुआ था। अगर हम टीम की सोच के चलें कि ये इधर से लग रहा है, कान पे लग रहा है, कान के पीछे लग रहा है, वो स्कोरिंग नहीं है। अगर स्कोरिंग बिलो के हिसाब से जीते देखें तो जगदीप ही जीता हुआ था। Congratulations once again. थैंक यू। आशीष, सर मैं अपनी तरफ से ही बोलूँगा, सिर्फ 2 बात बोलूँगा। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू SBL, बस थैंक यू। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे अंदर फटा हुआ था सारा वो। नहीं आपने बहुत कड़क फाइट किया, आपने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी, पूरा दम से खेला आपने। Yeah, and I think, you know, yeah. You know, there's a lot of pressure, you know, going into Ashish, you know, and, you know, to the heavyweights going into this fight. You know, it was a very close fight with Jagdeep, but, you know, Ashish, you know, he got rocked a couple of times in that fight, as did Jagdeep too. But these guys, they knew exactly what was on the line, you know, and they gave it their 100%. You know, when, you know, they thank us, you know, we thank them as well for putting on a fantastic performance. But, you know, it should be applauded. You know, it's tough when one team loses, especially, you know, in this fashion. But, you know, 100%, you know, goes out to all the guys. You know, they've put on a fantastic performance. Let's hear from some of the other fighters as well. मैं तो बोलूँगी कि जो भी शुरू से हम लोग का टीम था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा।
और शुरू से हम लोग पॉइंट जीतते आया और आज भी पूरा उम्मीद था हम लोग का मतलब जीतने का। फिर डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया, नीरज जीत गया। कोई नहीं, हम लोग का क्या है, हार जीत तो होते रहते हैं। फिर भी हम लोग सोचा था आज हम लोग का टीम जीतेगा, फिर भी नीरज गोयट का टीम जीत गया, नीरज कांग्रेस। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आगे भी हम लोग को आप लोग सपोर्ट करें, और यही कहना चाहूँगा बस। आज से 9 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन हुआ था इंडिया का सबसे पहले यूथ वर्ल्ड चैंपियन। आज भी वैसा ही खेला। मैं और ये साथ में मैक्सिको में गए थे 2008 में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ, जैसे तब खेला था आज भी वैसा ही खेला है, तो बूढ़ा नहीं होता कोई भी। मैं वैसा कभी नहीं सोचता अपना आप में। अभी तक यंग हूँ, अभी तक मैं NIS भी हो गया मेरा। और मैं सोच रहा था बॉक्सिंग कहाँ से शुरू करूँ मैं दोबारा। मैं सोच के मैं ट्रेनिंग करता था NIS में, फिर मैं मौका मिला, फिर खेलने के लिए मौका मिला, वो अच्छा लगा मुझे। हेलो सर, मेरा अपोनेंट मुझसे काफ़ी सीनियर था। जब मैंने बॉक्सिंग शुरू करी थी तब नौवा में थे ही, बहुत नाम सुना था मैंने। बट मैं जब भी रिंग में खेलता हूँ तो मेरे कोच कमाल सर एंड मेरे ब्रो नीरज गोयल जो भी स्ट्रेटजी मुझे बताते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग खेलता हूँ। एंड आज मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। बट मैं नॉकआउट के चक्कर में था, बट जो भी है। बट मैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से और अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं लास्ट फाइट देख के एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, सबको, कोई भी बॉक्सर है, सबको यही लगता है कि मैं जीता हुआ था, सबको। बट मैं बस फर्स्ट फाइट में लूज हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि आई एम विन। बट जो भी होता है सही होता है, जो भी जजेस का फैसला होता है, यही गेम की भावना है कि हमें स्वीकार करना चाहिए बस। थैंक यू। लास्ट फाइट मेरी थी और काफ़ी बर्डन था, क्योंकि जिस सिचुएशन में हमारी टीम थी, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये फ़ाइट निकालूंगा। और आशीष अच्छा लड़ा, लेकिन मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे पे भारी था। लेकिन लास्ट तक उसने पूरी जान लगाई। बहुत अच्छा प्लेयर है, आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा खेलेगा, उम्मीद करता हूँ। गॉड ब्लेस हिम। और नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी टीम है, बहुत शुरू से ही सबसे ऊपर चलती हुई आ रही है। दिल्ली के साथ टक्कर की टीम थी, और जब हमारे साथ इसका सेमीफाइनल आया तो हम लोगों के दिमाग में भी एक बार आया था कि क्योंकि आशरों का अच्छी प्लेयर है, लड़कियों में ये स्ट्रांग है, लेकिन हमारी जो अनीता है उसने बहुत अच्छी टक्कर दी उसको, क्योंकि अभी तक कंपटीशन में किसी भी लड़की ने ऐसी टक्कर उसको नहीं दी है। सो आगे जो हमारा फाइनल है उसमें भी हम अच्छा करने की सोचेंगे, और इस टीम को भी बधाई देता हूँ कि यहाँ तक पहुँची। थैंक यू सो मच। मैंने सर अपने हर फाइट में पूरा एफर्ट लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फाइट भी मैं लॉस हो गया, सेकंड फाइट ड्रॉ, एंड थर्ड फाइट भी। बसंत के अंदर मैंने आपसे ज़्यादा मैंने जितना एफर्ट देखा है किसी ने, हमेशा हर फाइट में आप 150% देते हो, हमेशा हमेशा एंटरटेनमेंट नॉकआउट के लिए ढूंढते हो, हमेशा। कांग्रेचुलेशन, हमेशा। थैंक यू सर। बस अब यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट फाइट एंड नेक्स्ट टाइम मैं अपनी तरफ से और एफर्ट लगा के आऊँगा और 100% विन होऊंगा। थैंक यू। So that brings us to the end of the semi-finals. I think this 5 weeks has moved very, very quickly. It certainly has for us, and I think for the fighters, and no doubt for the audience as well. But we have our finalists. We have obviously Haryana Warriors playing Maratha, the winners from yesterday, taking place this Saturday, and again here at Siri Fort. So please tune in live, Sony ESPN. Look forward to it. See you all then.